back students, standard 9th maths. This is chapter 11, construction, and new session 8, and we come up with new construction. Construction of triangle with given base angles. Children, both base angles are given and perimeter. Alright, say suppose triangle ABC is given. AB is base. Now this is 45 degree. This is 60 degree. And AB plus BC plus AC is equal to 12 centimeter. That means this is perimeter. Perimeter of triangle ABC. That is 12 centimeter. And the two base angle are given. So how to do that? Children, you are going to start by drawing a new line segment MN. जिसमें A, B और C नहीं आता है ऐसा नाम. So I'll draw line segment MN whose length is 12 centimeter. I'll draw one ray. फिर रेडियस 12 सेंटीमीटर ले लेता हूं जो काफी बड़ा है, लंबा है. ठीक है. So yes, this point I'm going to call it M. And this point I'm going to call it N. And how much is that? 12 centimeter. MN is 12 centimeter. Children, now I'm going to draw ray MX such that angle XMN is 45 degree. Alright? Left side पे A है and angle of measure 45. Left side का point M है. So 45 angle बनाओ M. So कैसे? That you know very well. Yes, ये semicircular arc जैसा first 60, second 60 को bisect करना है. So you are getting right angle, लेकिन मुझे तो 45 चाहिए. Correct? So सिर्फ हल्के हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं. ये दो पॉइंट के बीच का आर्क 90 बता रहा है, उसका बाइसेक्ट करना है. सो सेंटर ये ले लिया, एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूं, दूसरा सेंटर ले लिया और आर्क. अभी ये रे में ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत लंबा नहीं, शॉर्ट वन. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड. ये पॉइंट के आगे नहीं जाने देने वाला हूं. नाउ दिस इज 45. नाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट रे NY. Okay, this point I am going to call it as X. Now construct ray NY such that angle YNM is equal to 60 degree. 60 degree is very simple. एक arc draw किया और the first part itself is 60. मैंने कहा बहुत लंबा arc draw ray नहीं draw करने वाले हैं हम. That's it. And this point is Y. Alright. So you have constructed ray MX such that angle XMN equal to 45 degree. You have constructed ray NY such that angle YNM is equal to 60 degree. Alright, children, now you are going to construct bisector of angle M and bisector of angle N. They will intersect at this point C. So ये triangle के construction में first you are going to get C, children. पहले C मिलने वाला है, base नहीं मिलने वाला है. And how you are going to get C? The bisector of angle M and bisector of angle N. चलिए bisector of angle N. ये दो point है ही already. See? This 2 point already equidistant from the vertex. So यहाँ arc और ये center से arc. ये दो point यहाँ भी already है. So काम कर ही लेते हैं. यहाँ से एक arc और यहाँ से एक arc. This rays, they have to intersect each other. This point, let me take that ray here, and this point, this is angle bisector. उसको अलग अलग नाम में नहीं दे रहा हूं, इसको कह रहा हूं point C. So next step is construct ray MC, the bisector of angle XMN, and ray NC, the bisector of angle YNM, intersecting each other at point C. करेक्ट. चलिए उसके बाद MC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन L
और NC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन M, दे विल इंटरसेक्ट MN इन पॉइंट A, पहला वाला A में और दूसरा वाला B में, फिर AC और BC को ज्वाइन करो, ट्रायंगल मिल जाएगा। चलिए MC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर C सेंटर लिया, रेडियस मोर देन हाफ ले लिया, एकदम बाहर से मुझे मिल रहा है। ऑलराइट, सेंटर M ले लो, यहां कट हुआ, यहां कट हुआ, लकीली वी गॉट दैट पॉइंट। यहां से लाइन M हल्के हाथ से ड्रॉ करो, वेरी लाइट, ओके, दिस इज लाइन L, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MC, इंटरसेक्टिंग MN इन पॉइंट A, दिस इज योर पॉइंट A। नाउ NC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, NC बोलो, CN बोलो, सो ये N ले लिया, सेंटर हाफ से ज्यादा हो ही गया है। चलिए यहां एक आर्क, यहां एक आर्क, सेंटर C लेंगे, यहां एक आर्क, यहां एक आर्क, ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन CN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और उसको मैं लाइन M बोलूंगा, हल्के हाथ से ड्रॉ कीजिए, दिस इज लाइन M एंड इट इंटरसेक्ट्स MN इन पॉइंट B, ड्रॉ AC एंड BC, ये रहा आपका ट्राइंगल मिल गया। ट्राइंगल का बेस अभी मिला, देखो BC इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज कंस्ट्रक्टेड। आपकी समझ में आई बात? श्योर, 100%। अब जस्टिफिकेशन, ऐसे सब स्टेप्स हमने क्यों किए वो समझना है। चलिए, हमने ये एंगल 45 लिया था, 45 का बाइसेक्टर किया, सो 22.5 मिला। नाउ दिस पॉइंट इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, करेक्ट, सो AC इक्वल टू AM, MC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो AC इक्वल टू AM, सो AC के सामने ये एंगल, सॉरी AM के सामने ये एंगल और AC के सामने ये एंगल, बट दिस इज 22.5, सो ये भी 22.5 हो गया 20। अब ये ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में दो एंगल 22.5, सो टोटल 45 हुआ और तीनों का टोटल 180 में से माइनस करो, सो दैट गिव्स मी 135, सो मेजर ऑफ दिस एंगल इज 135 और ये उसका लीनियर पेयर, तो 180 में से 135 माइनस करो तो 45। ओ चिल्ड्रन, एंगल 45 मिल गया, मिला कि नहीं? यस। चलिए, नाउ ये पूरा 60 है, उसका बाइसेक्टर हमने लिया था, सो ये 30, ये 30। नाउ ये बाइसेक्टर ऑफ साइड CN है, सो BN इक्वल टू BC है कि नहीं? दे आर इक्विडिस्टेंट, CNN इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, क्योंकि B फ्रॉम B, क्योंकि B इज अ पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CN, सो इसके सामने एंगल 30, तो इसके सामने एंगल भी 30, 30 प्लस 30 60 और 180 में से माइनस करो, सो 120, सो ये तीसरा एंगल 120, इसके साथ ये लीनियर पेयर बनाता है 60 का, यस, 180 में से 120 माइनस करो तो लीनियर पेयर मिल गया 60, ये रहा एंगल भी 60। See that, children, how wonderful that is. I hope you have understood. Now let's take an example and also write the steps of construction there. I hope you have understood the justification. Good. Let's see an example. Construct triangle ABC in which angle B is 60, angle C is 45. So B and C are two base angles. AB plus BC plus AC equal to 11. So perimeter is given. I'll draw the rough figure, children. Yes. Base angles, both are base angles. So this is B, this is C, and this one is A. All right. I'll start by constructing one line segment PQ of length 11 centimeter. All right. आप पहले रे ड्रॉ कर लीजिए, इसको P कहो, नई लाइन सेगमेंट, ये भी सी के अलावा कोई भी नेम PQ ले रहा हूं मैं, पिछले में हमने MN लिया था। हाउ फार इज Q फ्रॉम P? जितना भी पेरीमीटर हो, पेरीमीटर 11 है, सो टेक रेडियस 11, देयर यू आर। कंस्ट्रक्ट सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 11 विच इंटरसेक्ट्स दिस रे एट पॉइंट Q। हमको तो गिवन लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट PQ सच दैट PQ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, दैट इज द स्टेप वी आर गोइंग टू राइट। ओके, चलो
Now what you are going to do? Yes, ray px such that angle xpq equal to ये कितना, ये 60 और ये 45. ऑलराइट, तो 60 ड्रॉ करेंगे. ऑलराइट, 60 के लिए तो एक ही पार्ट चाहिए, तो ये मिल गया. दिस इज 60. छोटा सा रे ड्रॉ करो, लंबा रे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. और इसको कहो रे px. ऑलराइट, अब रे qy मेकिंग 45 के लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. पहले ऑलमोस्ट अ सेमी सर्क्यूलर आर्क, then first 60, next 60, यहां और यहां इंटरसेक्ट हो रहा है. ये 60 का बाइसेक्टर करो, और ये तो 90 देगा आपको. हल्के से हाथ से लाइन ड्रॉ करूंगा, ये 90. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो आर्क है, दैट गैप शोज यू 90 डिग्री. लेकिन मुझे तो 45 चाहिए, सो उसका बाइसेक्टर रेडियस बदल रहा हूं मैं. दिस सेंटर, ये सेंटर, एंड दिस पॉइंट, दिस रे. लंबी रे नहीं ड्रॉ करना यहां. कॉल दिस रे QY. दैट्स इट. नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P and bisector of angle Q. Both intersect each other at point A. चलो, angle bisector. अरे children, you already got these 2 points. So ये और ये, this point extend कर लो. ओके, नाम नहीं दे रहा हूं अभी. अब यहां से ये 45 का है, this and this 45 का बाइसेक्टर. यू गॉट दिस पॉइंट. सो ये रे ड्रॉ करो. दोनों रे कहां मिल रही है? जहां भी मिल रही है वो आपको पॉइंट ए दे रहा है. दिस इज पॉइंट ए. सो कंस्ट्रक्ट रे PA द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XPQ एंड रे QA द बाइसेक्टर ऑफ एंगल YQP. ऑलराइट, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट A. ओके, नाउ PA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो सेंटर A ले लो, रेडियस मोर देन हाफ, और ज्यादा ले लो, ऐसे बाहर दिखाओ. फिर सेंटर P लेकर हियर एंड हियर. सो यू गॉट दिस 2 पॉइंट्स. यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट लाइन L थ्रू देम, एंड दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. हल्के हाथ से ड्रॉ करो. लाइन L perpendicular bisector of AP intersecting PQ in point B. Then you are going to construct perpendicular bisector of AQ. चलिए, सेंटर Q ले लो, ये हाफ और मोर देन हाफ, ठीक है. सेंटर A ले लो, यहां और यहां. So this point and this point. Through this point you have line M. हल्के हाथ से ड्रॉ करो. द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AQ which intersects PQ in point C. Draw line segment AB and line segment AC. Required triangle ABC is thus constructed. Let's write the steps of construction. All right, what is the first step? Yes, construct a line segment PQ such that PQ is equal to 11 centimeter. Alright, उसके बाद क्या किया आपने? रे PX. Construct rays PX and QY the bisectors. दो स्टेप को मर्ज कर रहा हूं. बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, सॉरी
ray px and ray qy such that angle xpq equal to 60 degree and angle yqp equal to 45 degree. यहां दो स्टेप साथ में, रे पीए कंस्ट्रक्ट rays PA and QA, the bisectors, यहां bisectors of angle XPQ and YQP, angle YQP intersecting each other, intersecting each other at point A. फिर क्या किया? कंस्ट्रक्ट लाइन L, कंस्ट्रक्ट लाइन्स L and M, the perpendicular bisectors of AP and AQ, which intersects PQ at points B and C respectively. All right. यहां भी rays, construct rays. So here also at point respectively. चलिए, हो गया, पॉइंट ए मिल गया. नाउ ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स, दो है लाइन सेगमेंट्स AB and AC. Required triangle ABC is thus constructed. Clear children? Now justification. दो जस्टिफिकेशन. एक जस्टिफिकेशन मैंने पिछले बेसिक्स में नहीं किया है, ओके, वो भी बता दूं मैं. सी दिस MN इज इक्वल टू, आपने क्या लिया था, 12 सेंटीमीटर. ओके, नाउ MN में हमको क्या मिल रहा है, M डैश A डैश B डैश N. सो AM प्लस AB प्लस BN is equal to MN. Now this MN is 12. AM equal to AC. So AM की जगह पे AC. AB as it is. और BN equal to BC. BN की जगह पे BC AM के. So you got that perimeter AB plus AC plus BC equal to 12. Clear? ऐसा ही कुछ यहाँ. Justification. पहले perimeter का ही justification कर देते हैं. All right? PQ is equal to 11 centimeter. Therefore, PB plus BC plus CQ is equal to 11 because P dash B dash C dash Q. Now PB equal to AB. So PB की जगह पे AB. BC as it is and CQ equal to CA. CQ equal to CA. That is equal to 11. Done. एक justification हो गया. Correct? Okay. That's it. Construction, steps of construction and justification. Well, we end up this session here. See you in the next session. Till then, goodbye.